Hello my dear student. Let's hope you all are very fine. I too. Now we have been learning regarding the IUPAC nomenclature since last few lectures. Now this will be the lecture number 26 for the topic some basic principles and techniques. Now we have been learning regarding the IUPAC names of some other classes of organic compounds, in which we have seen alkene, we have seen alkyne, we have seen halogen derivatives also. Now we will proceed further and we will see the next class, that is number 4, alcohol. What do you have to learn? Alcohol. Now remember, alcohol is written particularly as alkanol in the IUPAC name, okay? Where ending E from the name of alkane is to be replaced by OL. That means suppose we are having CH3OH. Then what is the name of this alkane? Methane. So methane ending E will be replaced by OL. Ending E will be replaced by OL. And what will be the name now? That will be methanol. E is removed now and it is replaced by OL. So we will be having this methanol. Okay, very simple. Suppose I am having this compound CH3CH2 CH2OH. CH3CH2 CH2OH. Now this is propane. So from the name propane we have to replace E by OL. But one more propanol will be possible. Suppose I will write like this: CH3CHOH CH3. Now this is also having 1, 2, 3 carbon. This is having 1, 2, 3 carbon. So both are there propane and E is replaced by OL. So we should get propanol. सही है, पर ये आइसोमर्स कहते हैं, हमें मालूम है, पर्टिकुलरली ये पोजीशन आइसोमर्स है. यहाँ पे OH जो है, so we have to give the numbers now and numbering should be started from nearest end of the branch और functional group. यहाँ पे functional group है, तो functional group का जो nearest end है वहां से हमको नंबरिंग देना है. So this will be the number 1, number 2, number 3. और यहाँ पर भी number 1, number 2, number 3. And now position of that should be indicated in the IUPAC name. तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन, PROPAN. E निकाल देंगे, फिर हाइफन, फिर नंबर 1 पे OH है, नंबर 1 OL. So what is IUPAC name of this compound? Propane 1 OL, propanol. या इसे ऐसा भी लिखते हैं 1- propanol. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल. तो इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC नेम? नंबर 2 कार्बन पे OH आया है, सो व्हाट विल बी द नेम नाउ? 3 कार्बन का है प्रोपेन, देन -2, देन OL. E is replaced by OL. और ये नंबर 2 क्या बता रहा है हमको? That OH group is present on carbon number 2 or it is also named as 2-propanol. Very simple my friends. Okay, यानी यहाँ पे particularly OH group के ऊपर ध्यान दिया है. OH group is considered as main and alkane is named as alkanol. E is replaced by OL at the end. Okay, अब देखो, समझो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका नाम क्या दे सकते हैं? अब देखो, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो क्या है यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप OH है। ये चेन जो है वो 2 कार्बन की है, एक और एक 2, और या ऐसे अगर वर्टिकल ले लिया मैंने तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। 3 कार्बन की चेन तो हमें लॉन्गेस्ट दिखेगी। वी हैव टू सिलेक्ट दिस एंड नाउ इट शुड बी प्रोपेन। अब ब्रांचेस देखो क्या क्या है। नंबर 2 कार्बन इज हैविंग मिथाइल ब्रांच, कार्बन नंबर 2 इज हैविंग मिथाइल ब्रांच एंड OH इज आल्सो ऑन कार्बन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा नाम इसका? देखो, इट विल बी नेम्ड एज 2-मिथाइल प्रोपेन -2-OL। 2-methyl propane 2OL will be the correct name of this। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। दैट अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट माय फ्रेंड्स। ओके, अगर कुछ लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड देते हैं तो भी हमें आना चाहिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सपोज दैट आई विल हैव some long chain isomer, then also it is not difficult there. Suppose I will take the molecule like this, चलो ये भी लिख लेंगे। एंड सपोज आई हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड देयर, IUPAC नेम दे सकते हो। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट विद द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, यू नो। पहले इसको हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं या तो यहां पर भी लिख सकते हैं। ओके, ये देखो, ये टर्मिनल यानी क्या हो गया? CH3। देन ये 1 2 3 कार्बन है, 3 लाइन है। 3 लाइन है का मतलब क्या होता है? CH। ओके, टर्मिनल इज CH3, so this is CH3। गॉट इट? CH3 CH CH3। फिर इधर एक बॉन्ड है, यहां पर भी 3 लाइन है, 1 2 3, तो ये भी हो गया CH, टर्मिनल इज CH3। ओके, समझ लो अच्छी तरह से। ये CH CH3, ये CH CH3। अब ये भी आ गया 3 लाइन का यानी CH। ओके, और ये ऊपर आ गया 2 लाइन यानी CH2, टर्मिनल यानी CH3। फिर ये आ गया 2 लाइन का जंक्शन CH2, फिर ये आ गया CH, 3 लाइन का जंक्शन 1 2 3, यहां पे आ गया OH और टर्मिनल यानी CH3। समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल। देख लो आप, अभी यहां पे ये जो मैंने एक्सपांशन किया है वो आपके ध्यान में आ रहा है कि नहीं? देखो, CH3 टर्मिनल CH3, ये CH3 टर्मिनल CH3, ये CH3 टर्मिनल CH3, ये CH2 CH3, CH2 CH3, ये यहां पे OH और टर्मिनल CH3। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पे 3 लाइन दिख रहे थे वहां पे CH, 3 लाइन CH, 3 लाइन CH, 3 लाइन CH। ओके, सिंपल है, वेरी सिंपल। वंस यू विल बी एबल टू डू दैट एक्सपांशन देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। नंबरिंग कहां से देना है दैट यू शुड नो। नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये इतना आप बोलेंगे यहां से नजदीक आता है सर, ये देखो 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। नो,
रूल क्या बता रहा है IUPAC का? IUPAC रूल इज सेइंग दैट नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ functional group. So automatically this is number 1 carbon, this is number 2, this is number 3, this is number 4, number 5, number 6, number 7. So definitely it is heptane. हेप्टेन है, उसमें E निकाल दिया, 2 नंबर के कार्बन पे OH है. So हेप्टेन 2-ol है डेफिनेटली. पर यहाँ पे आ रहा है CH2CH3 4 नंबर पे, यानी 4' इथाइल और 5,6 डाइमिथाइल. 4' इथाइल डैश 5,6 डैश डाइमिथाइल. ओके, 4 इथाइल 5,6 डाइमिथाइल heptane 2-ol will be the correct name of this. Very simple. अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर 2 OH ग्रुप आते हैं तो क्या नाम देना है. अगर समझो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 CH OH CH2 OH. So this is diol. It is named as diol. तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 2 3 4. तो यहाँ पे एक रूल ऐसा है, अल्केन का नाम हमें पूरा लिखना है, ई नहीं निकालना है. अभी ब्यूटेन का पूरा नाम लिखा है ब्यूटेन, ई नहीं निकाला है. यहाँ पे जैसा हेप्टेन का ई निकाला है, एक ही OH है. तो बट सिंस हियर देयर आर 2 OH ग्रुप्स, it butane is written completely as per the IUPAC rule dash 1,2 dash diol. What do you mean by this? यानी 1 नंबर और 2 नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप है, that's why it is named as diol. That is butane 1,2 diol. तो ये बात यहाँ पे हमको ध्यान में रखनी है, that full name of alkane should be written there, isn't it? तो ये रूल अच्छी तरह से जान लो. सो आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग द रूल्स वेरी प्रॉपरली. फिर हमें 12th में भी अल्कोहल जब पढ़ना है, एट दैट टाइम अगेन देयर विल बी IUPAC नॉमेनक्लेचर. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट वी शुड लर्न हाउ द IUPAC नेम्स आर गिवन टू द different classes, because one of the MCQ may be possible on that. So I hope you are getting it. Please do like, share and subscribe my channel. We'll meet in our next lecture. Thanks a lot.